نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما قتلوه وما صلبوه. حضرات گرامی قدر، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مربی خاص ہے جو سوشل میڈیا پر آج کل بڑا متحرک ہے، شمائل عرف رانا خان۔ اس کے ساتھ گزشتہ دنوں میسنجر گروپ پر گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کے سامنے یہ ایک تحریر رکھی۔ یہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کی تحریر ہے عربی کی، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ایک جزو ہے میرے الہامات میں سے ایک جملہ الہام کا یہ ہے کہ بے شک ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا دیا، اور اللہ کی قسم میں بہت عرصے سے جانتا ہوں کہ بلا شبہ مجھے مسیح ابن مریم بنایا گیا ہے، اور میں اس کے مقام پر اترنے والا ہوں، مگر میں نے اس الہام کو چھپائے رکھا تعویل کے پیش نظر، لیکن میں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا، اور میں نے اسے مضبوطی سے پکڑنے والوں کی طرح پکڑے رکھا، اور 10 سال تک اس کے اظہار میں توقف کیے رکھا۔ نہ میں نے جلد بازی کی، نہ سبقت کی، اور نہ اپنے پیاروں کو خبر دی، نہ دشمن کو خبر دی، نہ حاضرین میں سے کسی کو بتایا۔ یہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن کی جلد 5 صفحہ 551 کی تحریر ہے، عربی کی تحریر ہے، جس کا میں نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ تحریر پیش کر کے میں نے لکھا کہ قادیانی حضرات، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آپ کے مسیح موعود نے 10 سال تک اپنے الہام کو چھپائے رکھا، جس کا اعتراف اس کی مندرجہ بالا تحریر میں موجود ہے۔ اب ہم آپ کے مسیح موعود سے ہی ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ لیتے ہیں جو اپنے الہامات کو چھپاتا ہے۔ چنانچہ آپ کے مرزا صاحب ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ فَقُلْتُ إِنِّي أَرَى الصَّوَابَ فِي تَعْظِيمِ الْإِلْهَامِ وَإِنَّ الْأَخْفَاءَ مَسِيَّةً عِنْدِي وَمِنْ سَيْرِ الْأَلْعَامِ۔ تو لکھتا ہے، اس پر میں نے کہا کہ میں الہام کو عظمت دینا ہی درست سمجھتا ہوں، اور اس کا خفا میرے نزدیک معصیت اور کمینوں کے خصائل میں سے ہے۔ یہ ضمیمہ حقیقت الوحی استفتاء مترجم صفحہ نمبر 88 ہے، روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 656 کی یہ تحریر ہے جو میں نے پیش کی ہے۔ یعنی کہ لکھا آگے میں نے قادیانی حضرات، انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیجئے، کیا آپ کے مسیح موعود میں اپنے الہامات کو چھپانے کے سبب کمینوں والے خصائل موجود تھے یا نہیں؟ جواب کا منتظر خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف۔ یہ سوال میں نے رانا خان کے سامنے رکھا بار بار، اور اس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں، آپ پڑھ لیں کہ رانا خان کو منشن کر کے یہ بھی لکھا کہ دسیا نہیں جی پھر تواڈے مرزا صاحب وچ الہام چھپانے دے سبب کمینیاں والے خصائل ہے سن یا نہیں؟ یعنی یہ امت مرزائیہ سے میں بار بار سوال کرتا ہوں جس کا وہ جواب دینے پہ تیار نہیں ہوتے۔ پھر حیات مسیح پہ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ایک تحریر پیش کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی گپیں اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے لکھا کہ دوستو، آپ نے بڑے بڑے جھوٹ سنے ہوں گے اور بڑے بڑے گپوڑیوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا۔ گپوڑی عموماً بے وقوف ہوتے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ریڈیو گپستان حواس باختہ اور بے وقوف ہونا مشہور ہے۔ ان کے چیلے چانٹے بھی ایسے ہی تھے، لہٰذا اس حواس باختگی میں ایسی گپ چھوڑی کہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھے۔ سیرت المہدی کی روایت نمبر 88 ملاحظہ ہو، مرزا قادیانی ساری زندگی یہی رونا روتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لہذا جو وفات پا جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا، مگر اپنے مریدوں کے روبرو مرزا صاحب لافزنی کرتے رہتے تاکہ وہ انہیں بزرگ اور مہان تسلیم کرتے رہیں۔ مرزا صاحب نے ہوشیار پور میں ایک چلہ کیا اور یہ گپ ہانکی کہ ہوشیار پور میں ایک پرانی قبر پر متوجہ ہوا تو میری توجہ سے 100 سال پہلے کا مردہ قبر سے باہر نکل آیا، اور وہ دو زانو ہو کر میرے روبرو بیٹھ گیا۔ لیجئے، مرزا صاحب نے یہ گپ ہانک کر اپنے ہی آنکھ نکال لی، اپنے ہاتھوں سے زور سے کلہاڑی ماری، مگر اپنے ہی ٹانگیں کٹ گئیں۔ کیوں دوستو، کیسا لگا مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ لطیفہ؟ یعنی قادر مطلق خدا تو مسیح ابن مریم کو دوبارہ دنیا میں بھیج نہیں سکتا،
मगर मिर्ज़ा साहब की चंद मिनट की तवज्जो से 100 साल कबल मरने वाला कब्र से बाहर निकलकर दोजानो होकर मिर्ज़ा के रूबरू बैठ गया। सीरतुल मेहदी की ये रवायत मुबैना रवायत के स्कैन साथ लगा दिए गए। फिर कोई है जो इबरत पकड़े? जी हाँ, ये है वो सीरतुल मेहदी का जनाब ये स्कैन, ये आप पढ़ सकते हैं कि वाज़े तौर पे लिखा कि होशियारपुर से 5-6 मील के फासला पर एक बुज़ुर्ग की कब्र है जहाँ कुछ बगीचा सा लगा हुआ था। वहाँ पहुंचकर हजूर थोड़ी देर के लिए बेली से उतरे और फरमाया, ये उम्दा सायादार जगह है, यहाँ थोड़ी देर ठहर जाते हैं। इसके बाद हजूर कब्र की तरफ तशरीफ़ ले गए। मैं भी पीछे पीछे साथ हो गया और शेख अहमद अली और फ़तेह खां बहली के पास रहे। आप मकबरा पर पहुंचकर इसका दरवाज़ा खोलकर अंदर गए और कब्र के सराने खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठाए और थोड़ी देर तक दुआ फरमाते रहे। फिर वापस आए और मुझसे मुखातब होकर फरमाया, जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो जिस बुज़ुर्ग की ये कब्र है वो कब्र से निकलकर दोजानो होकर मेरे सामने बैठ गए, और अगर आप साथ ना होते तो मैं उनसे बातें भी कर लेता। उनकी आंखें मोटी मोटी हैं और रंग सांवला है। फिर कहा कि देखो, अगर जहाँ की मुजावर है तो उससे उनके बारे में पूछें। तो जनाब ये सीरतुल मेहदी जिल्द अव्वल, इसका टाइटल पेज भी आपके सामने है, ये देख लें। इसकी ये रवायत है, रवायत नंबर 88 है। और फिर आगे उनसे हालात पूछें। आगे लिखते हैं, चनांचे हुजूर ने मुजावर से दरियाफ्त किया। उसने कहा, मैंने उनको खुद तो नहीं देखा क्योंकि उनकी वफ़ात को करीबन 100 साल गुजर गया है। हाँ, अपने बाप या दादा से सुना है कि ये इस इलाका के बड़े बुज़ुर्ग थे और इस इलाके में उनका बहुत असर था। हुजूर ने पूछा, उनका हुलिया क्या था? वो कहने लगे कि सुना है कि सांवला रंग था और मोटी मोटी आंखें थी। फिर हम वहाँ से रवाना होकर कादियाँ पहुँच गए। तो जनाब ये है सीरतुल मेहदी की 88 नंबर रवायत जो आपके सामने पेश की है। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने नईम अवान साहब, उन्होंने ये पेश किया हवाला कि अगर तुम मसलन दूध को जो बासी होकर सड़ने को है हाथ में लो और खूब उस दूध में नज़र लगाए रखो तो तुम्हारे देखते देखते हज़ार कीड़े बन जाएंगे। ये चश्मा मार्फत सफ़ा 117 है, रूहानी हुसैन जिल्द 23 सफ़ा 125 का हवाला है मिर्ज़ा साहब का ये कहना है। तो आगे से बंदा नचीस ने ये कमेंट किया कि अभी तो 5000 साल का कछुआ भी दिखाना बाकी है। और नईम अवान साहब कहते हैं, आग के पत्तों से परिंदे भी पैदा होने हैं। जी हाँ, तो सवाल मैंने ये फिर रखा कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 2-3 हज़ार साल नहीं हो सकती, लेकिन कछुए की 5000 साल उम्र हो सकती है, जबकि कादियानियों के नज़दीक दुनिया की कुल उम्र 7000 साल है। तो फिर आगे से मैंने भी एक और कमेंट दिया कि गलहरी मर जाए तो उसका सर गोबर में दबाने से दोबारा ज़िंदा हो सकती है। ये मिर्ज़ा साहब की कहना है, इनका हवाला मौजूद है, ठीक है जी। फिर आगे आप चलते जाइए। ये राना खां से गुफ्तगू हुई तो राना खां ने आगे से जवाब दिया कि जिस दज्जाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ करते देखा और तमीमदारी ने गिरजे में जंजीरों में जकड़े देखा, उसकी अब उम्र कितनी हो चुकी है? तो इसका जवाब जो है बंदा नचीज़ ने यही दिया कि राना खां साहब, हमें ना तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र पर एतराज़ है और ना ही दज्जाल की उम्र पर। एतराज़ तो आप लोगों को है, लेकिन इसके बावजूद कछुए की उम्र 5000 साल तस्लीम करते हो। अकल के अंधो, सोचो ज़रा, जो परवरदिगार कछुए को उम्र 5000 साल की उम्र दे सकता है, उस परवरदिगार के आगे क्या मुश्किल है कि दज्जाल को या ईसा अलैहिस्सलाम को तवील उम्र दे दे। बाकी ये भी तो बताओ, क्या तुम कछुए को हय्यो ला यमूत मानते हो? यह सवाल बार बार किया गया। तो राना खान ने आगे से कहा कि अकल के अंधे सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करके सिर्फ उन्हीं की वफ़ात क्यों मानते हैं, वहाँ खुदा की कुदरत को क्यों जुटलाते हैं? तो फिर आगे लिखता है कि मेरा ईमान है कि अगर किसी नबी को ज़िंदा रखने की ज़रूरत होती तो शाहिद हो जहाँ हज़रत अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज्तबा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा रखा जाता। तो हमारे एक दोस्त ने पूछा कि कछुआ की उम्र 5000 साल कौन कहता है? तो उसका जवाब बंदा नचीज़ ने ये दिया, सुन लीजिए ज़रा। जी, तो उसका जवाब मैंने ये दिया कि राना खां के मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी कछुए की उम्र
5000 साल है। और उसका यह हवाला मैंने पेश किया है मलफूज़ात का, आप सब साथी देख सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, ये मलफूज़ात का हवाला है, सफ़ा नंबर 295 है और 2 अक्टूबर 1902 के ज़ेर तहत ये हवाला मौजूद है कि बाज़ हैवानात की उम्रें बहुत बड़ी होती हैं। मसलन कछुआ की उम्र 5000 बरस तक होती है, इसलिए इसको अरबी में फ़िल्म कहते हैं, क्योंकि गोया ये हमेशा ही जवान रहता है। तो देख लीजिए, इसी तरह लिखते हैं कि सांप की उम्र भी बड़ी होती है 1000 बरस तक, यानी कछुए की उम्र 5000 साल होती है और हमेशा ही जवान रहता है। सोचने की बात है। अब मैं राना खां से बार बार सवाल कर रहा हूँ कि क्या तुम कछुए को हय्यो लाजमौत मानते हो या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, जिसका जवाब राना साहब ने बिल्कुल नहीं दिया। ये देखिए, फिर मैंने सवाल किया कि क्या तुम कछुए को हय्यो लाजमौत मानते हो या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, जवाब दीजिए। फिर सवाल किया कि जवाब दो, अब चुप क्यों हो राना खान, क्या तुम कछुए को हय्यो लाजमौत मानते हो या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। तो इसका जवाब जो है वो नहीं दिया। ये फिर दोबारा हवाला लगाया है मैंने मिर्ज़ा साहब का, वही मलफूज़ात का, जिसमें वो लिखते हैं कि बाज़ हैवानात की उम्रें बहुत बड़ी होती हैं। मसलन कछुआ की उम्र 5000 बरस तक होती है, इसलिए उसको अरबी में गिलम कहते हैं, क्योंकि ये गोया हमेशा ही जवान रहता है। तो इसी तरह आगे से राना साहब जो मेरी बात का जवाब देते हैं कि आप सिर्फ़ सैयदना हज़रत ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला को कादर मानते हैं, बाकी नबियों के बारे में क्यों नहीं। तो जिसका जवाब बंदा नचीज़ ने ये दिया। राना खान, हम तो तमाम नबियों के बारे में कादर मानते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसलिए मानते हैं कि हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम पे मानना वाजिब है। अब बात आओ जो बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कछुए को हय्यो लाजमौत मानते हो कि नहीं, अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, जवाब दो ना भाई। कछुए की उम्र 5000 साल है, हो सकती या नहीं हो सकती, बताओ। अगर कोई 5000 साल का कछुआ मौजूद है तो वो भी पेश कर दो भाई। 7000 साल तो आपके नजदीक दुनिया की उम्र है। जी हाँ, ये दोस्तों आपने मेरा जवाब सुन लिया। फिर मैंने दोबारा सवाल दिया कि या राना खां से के जवाब दो, अब चुप क्यों हो, क्या तुम कछुए को हय्यो लाजमौत मानते हो या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, जिसका जवाब राना खां ने बिल्कुल नहीं दिया। तो इससे आगे चलते हैं। ये बार बार मैं सवाल कर रहा हूँ कि जवाब दो, अब चुप क्यों हो, क्या तुम कछुए को हय्यो लाजमौत मानते हो या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। फिर अगला सवाल मैंने एक और कर दिया कि हकीकी भाई किसे कहते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो है, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी भाइयों की भी इज़्ज़त करता हूँ। तो हकीकी, और कुरान तो कहता है कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। इसी तनाज़र में ये सवाल था जिसका राना खां ने जवाब नहीं दिया। ये देखिए, फिर मैंने सवाल किया कि जवाब दो, अब चुप क्यों हो, क्या तुम कछुए को हय्यो लाजमौत मानते हो या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, और हकीकी भाई किसे कहते हैं ये भी बता दो, जिसका जवाब नदारत था। फिर दोबारा यही सवाल दिए, देखें बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, आप रेड कलर का जो तहरीर है वो चेक करते जाएं, बार बार ये चीज़ दोहराई जा रही है, लेकिन राना खां इसका जवाब देने पे तैयार नहीं है। फिर बंदा न चीज़ ये ऑडियो करता है, तो उससे पहले ये सुनते जाइए मेरी ऑडियो कि मैंने क्या कहा इस बारे में। मैंने ऊपर तकरीबन 8-10 मरतबा ये सवाल दोहराया है कि बताओ तुम कछुए को हय्यो लाजमौत मानते हो या नहीं, अगर नहीं मानते तो किस वजह से नहीं मानते, वो वजह बता दो। राना खान ने ये भी नहीं बताया। दूसरा सवाल किया कि बताओ हकीकी भाई किसे कहते हैं, ये बता दो, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हकीकी भाई की तारीफ क्या है, फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। उसका भी जवाब नहीं दिया। इससे पहले मैंने एक सवाल बार बार पूछा कि क्या तुम्हारे मिर्जा साहब में कमीनों वाले खसाइल मौजूद थे या नहीं, उसका भी जवाब नहीं दिया। हर सवाल से भाग रहा है, ऐसे समझ नहीं आती इसको क्या जाता है, और ऐसी ऐसी फटे मारता जिसका हिसाब कोई नहीं। ये 3 सवाल के 3 में से एक का भी जवाब नहीं। अभी दे हिम्मत है तो जवाब दो बच्चे, घबराते क्यों हो राना खान। जी मोहतरम, ये मैंने जो ऊपर ऑडियो किया आप दोस्तों ने सुन ली। फिर दोबारा मैंने सवाल किया कि 3 सवालों का जवाब तुम पर कर्ज है, क्या आपके मिर्ज़ा साहब में अपने लहाम को छुपाने के सबब कमीनों वाले खसाइल थे या नहीं,
क्या तुम कछुए को हय्यो लाजमूत मानते हो या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, और हकीकी भाई किसे कहते हैं। और फिर आगे मैंने सवाल किया, वैसे राना खां तो कुरान करीम को भी मानने के लिए अंजील और बाइबल के मोहताज हैं, कहें तो स्कैन पेश करूं राना खां के। तो इस हवाले से ये मैंने स्कैन पेश किए। कुछ अर्सा कबल मेरी गुफ्तगू हुई थी फेसबुक के ऊपर राना खां के साथ, तो उसमें राना खां ने वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी थी कि कुरान की बात का अगर कोई सबूत ही मौजूद नहीं तो शक नहीं होगा तो और क्या होगा। बैदुल लतीफ़ साहब, मैं तुम्हारी तरह अबू जहल का ईमान कुरान पर नहीं रखता, बल्कि दलील और सबूत के साथ ईमान रखता हूँ। जो तुम्हारा अकीदा वमा सलबूहु, ना सलीब दिए गए है, इसका सबूत पेश करो। ये आप स्कैन दोस्तों देख रहे हैं कि ये राना खां का स्कैन था। वो कुरान करीम के ऊपर मुझसे सबूत मांग रहा था वमा सलबूहु के ऊपर। ये उसका दूसरा स्कैन भी देख लीजिए, ये आपके सामने है कि मैंने सवाल किया था कि ईसा इब्न मरयम के हवारियों के ये अमाल कुरान करीम और सही हदीस से साबित करो, खुसूसन ईसा अलैहिस्सलाम का सलीब दिया जाना। तो उसके जवाब में राना खां फिर कहता है कुरान का सबूत कहाँ से मिलेगा। मसलन कुरान कहता है कि यहूद ने दावा किया वक़ौलहुम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरयम रसूलुल्लाह, कि हमने ईसा इब्न मरयम मदई रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया। उसका क्या क्या सबूत है कि यहूद ने ये कहा था। बैदुल लतीफ़ ये वो मुझे मुखातब कर रहा है, तो मैंने आगे से जवाब था, क्या तुम्हें कुरान करीम पर कोई शक है राना खान, जो तुम कुरान की कही हुई बात पर यकीन नहीं कर रहे और कुरान की कही हुई बात का सबूत तलब कर रहे हो। जो ये हौसला तो वाकई कादियानी ज़रियत का ही हो सकता है, हमारा नहीं। हमें तो कुरान करीम पर 100% एतमाद है कि कुरान करीम में बयान की गई हर बात सच्ची है, जिसके लिए हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। ये देख लें। ये फिर मैं आगे लिखा मैंने कि अब बताओ कि कुरान तो कहे कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, यानी वो न कत्ल किए गए और न सलीब दिए गए, लेकिन तुम लोग कुरान के मुकाबले झूठी ईसाई रवायात को तरजीह दो कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम सलीब दिए गए। तफ है तुम्हारी सोच पर मिर्ज़ाइयों। ये था मेरा कमेंट्स। तो इसके ऊपर ये स्कैन पेश किए, इसके बावजूद वो मुझे कहने लगा है, जो राना खान ने जो इसका जवाब दिया, कुछ अरसे बाद कुछ वक़्त गुज़रा तो फिर मैंने ये सवाल किया उससे बार बार कि भाई ये देखें, इसने उलमाए देवबंद के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर दी कि वो अंग्रेज़ के ट्राउट थे, ये वो इस तरह की। लेकिन फिर मैंने ये सवाल किया उससे कि 3 सवालों का जवाब तुम पर कर्ज है राना खान, क्या आपके मिर्ज़ा साहब में अपने लहाम को छुपाने के सबब कीमिनों वाले खसाइल थे या नहीं, क्या तुम कछुए को हय्यो लाजमूत मानते हो या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, हकीकी भाई किसे कहते हैं, जिसका जवाब राना खान ने नहीं दिया। फिर दोबारा फिर उसके वो स्कैन जिसके अंदर वो उसने कुरान करीम पर सबूत मांगा था वो लगाए, और लगाने के बाद फिर सवाल किया कि क्या आप भी तुम्हें कुरान पर एतबार है या नहीं, या फिर आप भी कुरान करीम पर अंजील को हकम ठहराते हो। तो आगे से राना खां कहता है क्या कुरान ने झूठ कहा है, यही तो मेरा सवाल है, क्या कुरान बेबुनियाद बातें करता है। ये कैसा ईमान हुआ कि कुरान ने कह दिया और अंधे बनकर मान लिया। क्या कुरान अंधापन सिखाता है या अकल और बसीरत देता है। मेरा ईमान मौलवी वाला ईमान मन काना फ़ी हाज़ी आम फ़ावा फ़िल आखिरा आम वाला अंधा ईमान नहीं है। मैं कुरान को भी पूरी बसीरत के साथ दलील से मानता हूँ। तो फिर मैंने ये सवाल किया कि राना खां कौन सी बसीरत, कुरान तो कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं चढ़ाए गए, लेकिन तहरीफ शुदा अंजील को मानकर तुम कहो कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाए गए। फिर कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दलील और बसीरत मुहर्रफ बाइबल है। तो इसके जवाब में राना खां कहता है कुरान ने तो कहीं नहीं कहा कि मसीह सलीब पर नहीं चढ़ाए गए। कुरान कहता है यहूद ने मसीह को सलीब पर चढ़ाकर मारा नहीं, मारने की नफ़ी की गई है, और सलीब पर चढ़ाना मुहावरा है जिसका मानी सलीब पर मारना है, ना कि घोड़ी पर चढ़ाने की तरह सलीब पर चढ़ाना मुराद है। तो और उन्होंने सलीब पर नहीं मारा। फिर मैंने आगे से लिखा कि वमा सलबहु का तर्जमा बयान करो और साथ सलीब ना चढ़ाए जाने की अरबी बता दो। तो इस हवाले से मैंने ये अपनी ऑडियो भी की है, वो भी दोस्त अहबाब जो है वो समात फरमा लें। जी राना साहब बताइए कि वमा सलबहु का आपने कहा है कि सलीब पर मारा जाना, और सलीब पर ना चढ़ाया जाना या सलीब पर चढ़ाया जाना उसे अरबी में क्या कहते हैं। एक बात
और क्या सलीब पर चढ़ाकर मारे जाने को कत्ल कहते हैं या कि नहीं, ये इन दोनों चीज़ों की वजाहत कर दें। तो दोस्तों ये देखिए, फिर मैंने ये सवाल किया कि राना साहब क्या सलीब पर मारे जाने को कत्ल कहते हैं या नहीं। दूसरी बात, सलीब पर चढ़ाए जाने को अरबी में क्या कहते हैं, तो जिसका जवाब राना खां ने बिल्कुल नहीं दिया। और इस दौरान हमारे एक दोस्त हैं मिर्ज़ा आफ्ताब साहब, उन्होंने राना खां के साथ गुफ्तगू शुरू कर दी सूरह बकरा की पहली आयत पर कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो जो बिला शक व शुबे के मानना हमारी ज़िम्मेदारी, इस पर गुफ्तगू शुरू कर दी। लेकिन मैं आता हूँ अपने ही गुफ्तगू पर। तो फिर मैंने ये सवाल फिर दोबारा किया कि राना खां मेरे सवालात के कब जवाब दोगे, या सिर्फ़ हर बार भगोड़े बनने के रिकॉर्ड कायम करोगे। राना साहब बताइए, क्या सलीब पर मारे जाने को कत्ल कहते हैं या नहीं। दूसरी बात, सलीब पर चढ़ाए जाने को अरबी में क्या कहते हैं। तो राना खां कहते हैं जी अब आ जाएँ। तो फिर दोबारा मैंने फिर सवाल किया कि राना साहब जवाब दो, राना साहब बताइए क्या सलीब पर मारे जाने को कत्ल कहते हैं या नहीं। दूसरी बात, सलीब पर चढ़ाए जाने को अरबी में क्या कहते हैं। तो जनाब राना खां ने फिर मुझे मेंशन किया है। तो फिर मैंने वो अपना दोबारा सवाल दोहराया कि क्या ईसाईयत में सलीब पर चढ़ाया जाना ही लानत का मूजब है या सलीब के ज़रिए मारे जाना। राना साहब जवाब दो। राना साहब बताइए क्या सलीब पर मारे जाने को कत्ल कहते हैं या नहीं। दूसरी बात, सलीब पर चढ़ाए जाने को अरबी में क्या कहते हैं। तो जिसका जवाब राना साहब ने ऑडियो में दिया, जो मैं उस वक़्त सुनने से मजबूर था, तो मैंने ये ऑडियो उसकी लगा देता हूँ। जी मौलवी बैदुल्ला साहब, आपके सवाल का जवाब अर्ज करता हूँ सलीब के हवाले से कि सलीब एक पूरे प्रोसेस का नाम है। और अगर आपको कोई तारीख से इल्म है या आपने कुछ ईसाईयत को पढ़ा है, तो सलीब ये है कि लकड़ी का एक क्रॉस का निशान होता था, उसके ऊपर एक बंदे को कील ठोंक के लटका देते थे और वो 6 दिन तक वहाँ पे लटका रहता था। फिर उसको वहाँ से उतारते थे और उतारने के बाद उसके जिस्म की सारी हड्डियाँ बड़े बड़े लकड़ी के हथौड़े मार मार के उसकी तोड़ देते थे। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, जिसके बाद इंसान की को कहा जाता था कि इसको सलीब दी गई है। तो इस सलीब के प्रोसेस में इंसान की जान जाती थी। कत्ल करने के बहुत से ज़राए हैं, उनमें से एक ज़रिया सलीब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी मोहतरम, ये उसकी ऑडियो थी राना खां की, जो मैं उस वक़्त दौरान मुनाजरा नहीं सुन सका था। तो मैंने ये मैसेज किया कि जी राना साहब जवाब दीजिए, मुंतज़िर हूँ, लिख कर जवाब दें। ऑडियो में नहीं, ऑडियो नहीं सुन सकूँगा, नेट स्लो है। तो फिर राना खां ने जवाब दिया कि ईसाईयत में सलीब पर चढ़ाया जाना सलीब पर मरने को ही कहा जाता है, क्योंकि ईसाईयत में मौलवी नहीं है। ये उसने तनज़ किया था। तो मैंने इसकी तनज़ को पसे पुष्ट डालते हुए फिर सवाल किया कि दलील दीजिए राना साहब, बोंगी या नहीं, और मेरे तमाम सवालों के जवाब दीजिए। तो राना खां कहते हैं कत्ल की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जिनमें से एक सूरत सलीब के प्रोसेस के ज़रिए मरना है। दलील तो दे दी, अब बोंगी आपने मारनी है और दलील तोड़नी है कि ईसाईयत में सलीब पर चढ़ाकर ज़िंदा उतारने को भी सलीब दिया जाना कहा जाता है। तो आगे से मेरा सवाल था कि जब अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया वमा सलबूहु वमा कतलूहु, तो क्या उसमें सलीब के ज़रिए मारे जाना कत्ल शामिल था या नहीं। तो फिर मैंने कहा कि कौन सी दलील उसकी निशानदेही कीजिए, क्या सिर्फ आपका लाफ गज़ाफ दलील है। तो राना खां कहता है कि अब बोंगी आपने मारनी है और दलील तोड़नी है कि ईसाईयत में सलीब पर चढ़ाकर ज़िंदा उतारने को भी सलीब दिया जाना कहा जाता है। तो मेरा आगे से जवाब था कि जब अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया वमा कतलूहु, तो क्या उसमें सलीब के ज़रिए मारे जाना कत्ल शामिल था या नहीं। तो फिर दोबारा सवाल किया कि जी राना साहब, आपने मान लिया कि सलीब पर चढ़ाकर ज़िंदा उतारने को भी सलीब दिया जाना कहते हैं। ये राना खां ने अपनी टेक्स्ट दी, उसका मैं स्कैन लगाया दोबारा कि कत्ल की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जिनमें से एक सूरत सलीब के प्रोसेस के ज़रिए मरना है। दलील तो दे दी, अब बोंगी आपने मारनी है और दलील तोड़ने की ईसाईयत में सलीब पर चढ़कर ज़िंदा उतारने को भी सलीब दिया जाना कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि कत्ल की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जिनमें से एक सूरत सलीब के प्रोसेस के ज़रिए मरना है। ये राना खां की तहरीर मैंने पेश की आपके सामने। तो इसी के जवाब में मैंने लिखा
کہ جی رانا صاحب آپ نے مان لیا کہ سلیب پر چڑھا کر زندہ اتارنے کو بھی سلیب دیا جانا کہتے ہیں، تو جناب ہر طرح کے قتل کی نفی وما قتل ہو سے ہو گئی، اور سلیب پر چڑھائے جانے کی نفی وما صلب ہو سے ہو گئی۔ تو پھر رانا خان صاحب جو ہیں وہ یہ گوگل سے سرچ کر کے سلیب کے معنی بتا رہے ہیں کہ سلیب کے معنی ہیں اس شکل کا نام، اس قسم کا زیور جو عیسائی اپنے پاس رکھتے ہیں، خصوصاً رومن کیتھولک فرقے کے، ایک لکڑی کا بنا ہوا اس شکل کا آلہ پلس شکل کا، جس پر انسان کے ہاتھ پھیلا کر دونوں پہلوؤں کو لکڑی میں میخوں سے ٹھونک دیتے تھے اور پاؤں کو نیچے کی لکڑی سے میں اور پھر اس کو کھڑا کر دیتے تھے۔ اس طرح مصلوب کئی روز تک لٹکا رہتا اور سسک کر جان دیتا۔ عیسائیت کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اس لیے وہ اسے مقدس چیز خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جو تھی سکین یہ رانا خان صاحب نے پیش کیے، اور پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ عیسائیت میں صلیب پر چڑھا کر زندہ اتارنے کو بھی صلیب دیا جانا کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے پھر وہ مجھے مینشن کرتے ہیں رانا صاحب اس سلسلے میں کہ صلیب کے معنی دیکھ لیں، عبید اللہ لطیف صلیب کے معنی دیکھ لیں۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ اب پھر آگے رانا کہتا ہے کہ اب کوئی نئی بونگی مارے، میں تو سر یہاں بھی مسیحیوں کے مسیلوں سے بھی محو گفتگو ہوں۔ تو میں نے آگے سے جواب دیا جی آپ کے معنی قبول کر لیے میں نے، تو قرآن نے وما صلبہ کہا ہے، یعنی صلیب نہیں دیے گئے، اور آپ کے نزدیک صلیب دینا دونوں معنوں میں آتا ہے، صلیب پر چڑھا کر زندہ اتارنا اور صلیب پر موت دینا۔ تو جناب ہر طرح کے قتل کی نفی قرآن میں وما قتلوہ سے ہوئی اور صلیب پر چڑھائے جانے کی وما صلبوہ سے ہوئی۔ اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر رانا کہتا ہے کہ میں وہی کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہود نے کہا ہم نے مسیح کو قتل کر دیا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وما قتلوا، یہود نے مسیح کو قتل نہیں کیا، وما صلبوا، نہ ہی صلیب پر مار کر لعنتی ثابت کیا۔ یہ رانا خان کا بیان ہے۔ تو پھر آگے لکھتا ہے ولیکن رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے مسیح کو قتل اور صلیب پر مرنے کی لعنتی موت سے بچا کر ان کو اپنے دربار میں رفعت عطا فرمائی۔ جی یہ رانا صاحب کا بیان ہے۔ اس کے آگے میں لکھتا ہوں میرا جواب تھا کہ بائبل میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یعنی لکڑی پر لٹکایا جانا بھی لعنت کا موجب ہے، اور آپ کے بقول عیسائیوں کے لعنت والے عقیدے کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جناب پھر ماننا پڑے گا کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے۔ اگر صلیب پر چڑھایا جانا مانتے ہو تو لعنت والی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ وما صلبوہ میں عیسائیوں کے عقیدے کی نفی ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہاں ہر پر موت کا ذکر نہیں، وہ لعنتی ہے۔ تو صلیب پر چڑھایا جانا بھی مانتے ہو اور عیسائیوں کی نفی بھی کرتے ہو، کیسے؟ یہاں پر میں نے اپنے بڑے ہی پیارے دوست ہیں عارف محمد صاحب، جو بائبل اور انجیل کے یوں سمجھ لیں کہ حافظ ہیں اور رد عیسائیت پہ بڑا بھرپور کام کر رہے ہیں، ان کو منشن کر کے عرض کی کہ لکڑی پر لٹکایا جانا لعنت کا موجب ہے، کہ بائبل سے سکین لگا دیں۔ تو انہوں نے وہ حوالہ اندازاً پوچھا کہ گلیتون کا حوالہ ہے شاید، اور واقعتاً وہ حوالہ گلیتون کا تھا۔ یہ انہوں نے وہ تحریر لگا دی کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ کرسٹ ہیتھ ریڈی میڈ us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone on the hang on a tree۔ تو میں نے ان سے سکین کی ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے سکین تو نہیں لگایا، لیکن انہوں نے حوالہ بتا دیا کہ یہ گلیتون باب 3 ہے اور آیت نمبر 13 ہے جس کا یہ حوالہ ہے۔ تو اسی طرح استثناء 21 کے ہفتادی ترجمے میں بھی موجود ہے، یہ عارف صاحب نے بتا دیا۔ تو پھر میں نے بار بار سوال کیا کہ اب رانا غائب ہے، رانا کا ضد چھوڑ دو، حقائق تمہارے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ میں نے تمہارے مرزا صاحب نے بھی قرآن کی مخالفت کی ہے اور بائبل کے محرف اور جھوٹی روایات کو ترجیح دی ہے۔
قرآن کریم پر جو ایسا کرے تم اسے نبی سمجھ بیٹھے ہو، وہ تو عام مسلمان بھی کہلانے کا حقدار نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جب رانا خان نہیں آیا تو میں نے پھر یہ میسج کیا کہ اب میں مصروف ہونے لگا ہوں کیونکہ رانا پھر بھاگ گیا ہے، اللہ حافظ۔ تو یہ بات میں نے پیش کی تھی۔ تو حضرات کرامی قدر دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب اضالہ ہام میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پر چڑھائے گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کی حالت میں، زخمی حالت میں ان کے حواریوں نے ان کو اٹھایا، یہودی مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے، اور ایک کار میں لے گئے، وہاں پہ جا کے ان کا علاج کرایا، اور پھر وہاں سے جب وہ تندرست ہوئے تو وہاں سے ہجرت کر کے وہ کشمیر کی طرف آئے۔ یہ ساری باتیں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہیں۔ تو آج کی اس ڈبیٹ میں الحمدللہ مرزا قادیانی کی یہ تاثر کہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے، اس کی مکمل طور پر نفی کی، کیونکہ وما قتلوہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر ہر طرح کا قتل آتا ہے، خواہ وہ صلیب کے ذریعے ہو، گولی کے ذریعے ہو، کلہاڑی کے ذریعے ہو، کسی بھی شکل میں قتل ہو۔ یعنی یہود کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے قتل کی نفی کر دی ان کے عقیدے کی۔ اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے صلیب پر چڑھ گئے اور لعنت کا موجب بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی بھی نفی کی کہ وہ لعنت کا موجب نہیں بنے تھے، وہ صلیب پر نہیں لٹکائے گئے، وما صلبہ کہہ کر کے، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک جو لکڑی پر لٹکایا گیا ہے، خصوصاً مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے کتاب گلیتون ہے، باب 3 ہے اور آیت نمبر 13 ہے بائبل کی، عہد نامہ جدید کی۔ تو اس نے لکھا کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یہ بات بائبل عہد نامہ جدید کی ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں کہ لکھا گیا ہے لعنت، جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یہ عہد نامہ جدید میں والے نے عہد نامہ قدیم سے الفاظ اخذ کیے ہیں۔ تو یہ تھا ان عیسائیوں کا عقیدہ، اور اس سارے عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے وما صلبوہ کہہ کر کے نفی کی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، صلیب پر نہیں چڑھائے گئے، اور وہ لعنت کا موجب نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔